Beta, this is a workshop being organized by NSS department dedicated to National Nutrition Month, which is ongoing in the month of September. Let me introduce you to the resource person. Our Rosie ma'am is a passionate millet entrepreneur who is actively involved in the promotion and cultivation of millets. Awarded with the best startup at IIC Meet in 2022 at Chandigarh University. She is also honoured with Punjab State Award on Independence Day by Punjab Finance Minister for the promotion of millets and designing millet production as a startup. So ma'am will be telling you about the, this plant-based dairy alternatives, which can be a very nutritious, alternative, which is definitely dedicating to the month of nutrition, right? I hope you will all listen to her patiently, and we will be having a query session after this workshop, and you all will be listening to ma'am very carefully and will be noting down the points so that you can ask your queries if you have at the end of the session, right? So without taking much of the time, I would like to invite Rosie ma'am on the dais to take charge of the workshop ahead. Rosie ma'am. Thank you, ma'am. So, a very healthy, inspiring and nutritious morning, everyone. So, are you ready to listen to me? But before proceeding with the session, I would like to congratulate the entire team of NSS for organizing this, highly healthy initiative for celebration of Nutrition Month. And I actually feel fortunate to be connected with you people on this very platform. So whatever little knowledge I have, I'll be sharing it with you, and I hope I'm going to do justice on my part. So are you ready? So you know what we people are actually gathered here? Yes? What actually we have to do, or what is the topic of today's session? Yes? No one knows? So you can read it, Beta. It's already written. So it's all about non-dairy substitutes. The plant milk, right? The vegan milk. Have you ever heard about that? Yes. Have you ever heard about that? I don't want to give you the lecture or anything else because it's a kind of workshop. So don't worry. कि मैम को सुनना पड़ेगा, पता नहीं कितनी देर सुनना पड़ेगा. I'll be giving you all the hands-on training kind of exposure in this session. आपको पता चले what is actually plant milk or what are the vegan milk is all about, what vegan milk is all about. So I'm just asking you, have you ever heard, ताकि मुझे तो पता चले ना कि आपको इस बारे में पता भी है कि नहीं, so that I can start from there only. Yes, anyone? सारे एनिमल मिल्क पीते हो? I am not against animals. I am not against those who are non-vegetarians. But actually, I always prefer that you should be vegetarians. Moreover, and above all, you should be vegan because it is having lot more benefits, lot more nutritious benefits, right? So plant-based milk कैसे तैयार होता है? क्या होता है ये? And the way ma'am told you people that I have been awarded on this very Independence Day, the Punjab State Award by the Finance Minister for the promotion of millets. So I thought, why not to talk about millets or the millet milk, how you can prepare that and what is that all about. So this is the reason I'm asking you कि कभी किसी सुना है plant-based milk है क्या या किसी ने पिया हो? Soya milk? Yes, yes, yes. I'm happy to see your hand raised. Yes, Harsh. Vegan milk is made from nuts, soya bean, almond. Very good, very nice. Vegan milk is actually made from nuts, and he has, एक नाम और लिया इन्होंने कि सोया. Soya is not actually a nut. सोया तो legume है, ठीक है? So vegan milk means whatever the kind of liquid we can prepare from some plants. ठीक है? Plants may be nuts, plants may be cereals, plants may be legumes. ठीक है? पर ये नहीं है कि सब में ही दूध होता है.
उसको बनाना, उसको किस तरीके से यूज करना है, हर एक ग्रेन का मेथड इज डिफरेंट. So today I have taken the charge on millets. So I'll be using one of the very precious, very nutritious, very healthy millet, that is finger millet. So have you ever seen that millet? Finger millet नाम सुना? रागी, रागी तो सुना होगा. So let me show you how ragi it looks like. ले आओ दोनों उसमें डाल के बाउल में ना. So आपको I am audible because I have to leave the dais now. Am I audible to you? लास्ट में सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है, आर यू रेडी? कि कैसे दूध बनता है, वर्कशॉप है ना, तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए. अब दूध हमें पता है एनिमल से मिलता है, ठीक है, एनिमल काओ मिल्क, बफलो मिल्क, गोट मिल्क, कैमल मिल्क हमने सुना है, पर प्लांट मिल्क हमने किसी ने नहीं सुना, वो मैंने देख लिया है ना. यू डोंट नो अबाउट प्लांट मिल्क. तो प्लांट मिल्क में भी जैसे हर्ष ने बताया कि प्लांट मिल्क इज मेड फ्रॉम नट्स. तो आपने एलमंड मिल्क तो जरूर सुना होगा, एलमंड मिल्क है ना, ये बादाम का दूध. लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगी मिलेट्स के थ्रू कैसे हम दूध तैयार कर सकते हैं. और सोया मिल्क की भी बात आपको बताई. सोया मिल्क इज रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट. सबने देखा या सुना होगा सोया मिल्क, है ना? यस और नो? सोया मिल्क सबने सुना है. और सोया मिल्क को बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज एक्चुअली वेरी टेडियस. सो उसको थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि सोयाबीन्स के अंदर कुछ एक एंटी न्यूट्रिशनल कॉम्पोनेंट्स कुछ लेवल तक ज़्यादा है, तो उनको ख़त्म करने के लिए बहुत टाइम लगता है. वो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो, कि वो क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कैसे उनका काम होता है, कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं. सो आई हैव टेकन अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ मिलेट टुडे फॉर माई वर्कशॉप, फॉर दिस वर्कशॉप. ये सारे कंफ्यूज कि राई और रागी जो है वो वन एंड द सेम थिंग है. रागी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम राई. जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना मार्केट में, जो मसाले के लिए जो स्पाइस यूज करते हैं हम, वो एक्चुअल में क्या होता है, स्पाइस है. राई दाना डालना है, मस्टर्ड सीड डालना है ना, वो डोसे वाले सांभर और उन सारे प्रोडक्ट्स में साउथ इंडियन में यूज होता है. बट दिस इज रागी, दिस इज एक्चुअली अ मिलेट. ठीक है, इसको खा के देखो थोड़ा थोड़ा, ये सबके लिए है. इसका दो दो दाने सब खाते जाओ, आगे पास करते जाओ. यू हैव टू सी कि रागी क्या होती है, कैसे ये डिफरेंट है. सो हम इसका दूध आज तैयार करेंगे. इट इज वेरी ओके. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर, कि जो प्लांट मिल्क है उसको तैयार करने के लिए वी शुड बी नोइंग सम ऑफ द टेक्निक्स. ऐसे नहीं अभी ऐसे दूध तैयार कर दिया. हर एक के लिए आपको टेक्निक का पता होना बहुत जरूरी है. हर एक के लिए एक अलग टेक्निक है. हैव यू एवर सीन, अगर सपोज चूहे ने बिल्ली को देख लिया तो कौन भागेगा? बिल्ली भागेगी. यस, चूहा डर के मारे भागेगा. भागेगा कि नहीं भागेगा? ठीक है. बिल्ली किससे डरती है? डॉग से. तो सेम इज, अगर मैंने आपको चाटा लगाया, यू विल आल्सो रिटेलिएट. ठीक है, यू विल स्लैप मी आउट ऑफ एंगर. ऐसे होता है ना. तो हमारे पास तो लिम्स हैं, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद द लिम्स, इवन एनिमल्स दे आर ब्लेस्ड विद द लिम्स. सो हमारा ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स क्या करते हैं? अगर प्लांट्स के ऊपर कोई अटैक कर दे, कोई एनिमल अटैक कर दे, कोई उसने खा लिया कुछ उसका, है ना, कोई फल तोड़ लिया, कोई पत्ता तोड़ लिया, कोई ग्रेन्स ले लिए, देन हाउ प्लांट्स विल रिएक्ट? दे कैन नॉट रन. भाग सकते हैं वो? देन व्हाट इज द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स? वो क्या करते हैं? हील करते हैं. आई एम आस्किंग अबाउट द डिफेंसिव मैकेनिज्म. डिफेंसिव मैकेनिज्म का क्या मतलब? वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें? भाग तो हो सकते ही नहीं, उनके पास तो लिम्स नहीं है. सो दे हैव डेवलप्ड सम एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स इन देम, सो दैट जब भी कोई एनिमल उनके ऊपर अटैक करेगा तो वो उससे दूर हो जाएगा कि ये कड़वा है, ये बिटर है, या इसको ये टॉक्सिक है. ठीक है. सो बिफोर वी पीपल कंज्यूम दैट प्लांट प्रोडक्ट, वी हैव टू रिमूव दैट एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट. यस है कि नहीं? इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल दे डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द प्लांट फूड्स. द टैगलाइन ऑफ दिस इवेंट इटसेल्फ सेज कि प्लांट्स हैव मोर पावर, दे आर द मोस्ट पावरफुल फूड्स. बट वी पीपल एक्चुअली डोंट नो हाउ टू यूज देम, हाउ टू ग्रैब दैट पावर. यही होता है ना कि प्लांट फूड खा रहे हैं बट हमें वो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा. वी डोंट नो द कॉम्बिनेशंस, हाउ वी हैव टू कंबाइन द प्लांट सो दैट वी कैन टेक द complete nutrition out of them, right?
तो वो एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, हाउ वी हैव टू रिमूव देम? When we have received most of the teachers, they are only plant foods. तो वो एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स के साथ ही आए हैं. तो हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दैट एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट? कैसे रिमूव करेंगे? There are some processing methods like soaking, cooking, boiling, है ना? इस तरीके से हम लोग उसका एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट रिमूव करते हैं. चलो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको. घर में येलो दाल तो सबके घर में बनती है, एंड मदर्स दे यूज्ड टू सोक दैट दाल. भिगोती है पहले. आजकल वाली मम्मियां नहीं भिगोती बिकॉज दे डोंट हैव टाइम. ठीक है, बस लिया बाजार से आई, उसको ऐसे बना दिया. दैट इज व्हाई वी पीपल आर फेसिंग सो मच स्टमक प्रॉब्लम्स, ब्लॉटिंग हो रही है, गैस हो रही है ना? क्योंकि क्यों हो रही है वो? आप कभी भी भीगी हुई दाल देख लेना, उसके ऊपर बड़ा सारा फ्रॉथ आ जाता है, झाग आ जाता है, एंड दैट फ्रॉथ शुड बी रिमूव्ड आउट बिफोर कुकिंग. तो वो एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं सैपोनिन्स. झाग है ना, तो उसका नाम वही सोप से ले लिया, सैपोनिन्स. तो ऐसे बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे सोयाबीन में मैंने कहा ट्रिप्सिन. तो हर एक फूड के ये जो कंपोनेंट्स हैं ये डिफरेंट होते हैं. उसके बाद कुकिंग के टाइम पे भी पहले ओपन पैन में हम कुक करते थे. तो दे मदर्स और दादीज नानीज व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू रिमूव दैट स्कम. उसके बाद उसको कवर करके पकाते थे. हम अब क्या करते हैं? वी पुट द दाल इन कुकर, सारे को उसमें प्रेस किया एंड वी कंज्यूम दैट दाल. और फिर उसके बाद कहते हैं मेरा पेट फूल गया. क्यों नहीं फूलेगा? ठीक है ना? तो वो आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है. तो यू शुड बी नोइंग दीज टेक्निक्स की हाउ टू रिमूव द एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स. सो व्हाट आई हैव डन फॉर टुडे, ये आप देख लिया सबने. आई सोक्ड दिस रागी, ठीक है, ओवरनाइट. ये मैंने रात को भिगो दी थी क्योंकि जरूरी है. व्हेन यू हैव टू कंज्यूम रागी और फिंगर मिलेट मिल्क, तो इसको सोक करना जरूरी है टू रिमूव द एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट. इसमें बहुत सारा झाग वो अभी रिमूव हो गया, ठीक है, क्योंकि एक वॉशिंग में करके लाई हूँ. तो इसमें अभी भी झाग है. देखो ये बबल्स हैं. यू कैन यू सी दीज बबल्स? जिसको देखने आगे आगे देख लो. इसको सर्कुलेट करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? आई हैव बीन गिवन ओनली 15 मिनट्स टू रैप अप. सो ये रागी, सोक्ड रागी मेरे पास है. इसको हमने सारी रात भिगोया. जो आपके पास रागी दी थी वो अनसॉक्ड फॉर्म में थी, ये सोक्ड फॉर्म में है. ठीक है, इसके ग्रेन्स थोड़े थोड़े से फूल जाएंगे, ऐसे ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से इसके ग्रेन्स फूल जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आपने मतलब इसको जो आपने पोर्टेबल वाटर है वही पानी में आपने इसको भिगोना है. ठीक है, बट क्योंकि ये सारा रिमूव करना होता है झाग, तो इसको वन टाइम वॉशिंग में करके आई हूँ सो दैट वी कैन प्रिपेयर द मिल्क आउट ऑफ दिस. एंड रागी के मिल्क के बेनिफिट्स क्या हैं? प्लांट मिल्क की हम बात तो कर रहे हैं, पर पहले बेनिफिट्स की बात तो कर रहे हैं ना. बिफोर कंज्यूमिंग दिस मिल्क और बिफोर प्रिपेयरिंग दिस मिल्क, व्हाट आर द बेनिफिट्स? व्हाई टू कंज्यूम रागी मिल्क? हर चीज में वाई तो जरूरी है ना. वाई? You know the nutritional profile of ragi? Anyone? Millets all are very healthy and nutritious. बहुत ज़्यादा nourishment होता है उसके अंदर. But ragi एक ऐसा millet है, although it is neutral millet, but still it is loaded with lot and lot of calcium. दूध से तो इसमें 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम है. और अगर आप इसका माल्ट तैयार कर लोगे तो उसका कैल्शियम हो जाएगा 6 to 7 times more than milk. तो क्यों एनिमल्स को तंग करना है जब आपको होल नरिशमेंट इससे मिल रहा है, दैट टू इन अ वेरी इकोनॉमिकल फॉर्म, वेरी टेस्टी फॉर्म. अगर प्रोफाइल की बात करूं, काऊ मिल्क से कंपेयर करूं या बफलो मिल्क से कंपेयर करूं, तो इसका जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है दैट इज मच हायर देन द काउज और बफलो मिल्क. राइट? तो ये आपने सोक कर लिया. इसको अब हम क्या करेंगे? जैसे मैंने सोयाबीन की बात की, उसके लिए प्रोसेसिंग टेक्निक अलग है, उसको कुक करना पड़ता है पहले. उसकी कुकिंग के लिए भी प्रेशर, टेम्परेचर और सारी कंडीशन. सबसे सिंपलेस्ट मेथड है आज दूध बनाने का, तो ये हम लोग बनाएंगे, तैयार करेंगे. सो आई पुट दिस रागी इन अ मिक्सर जार डायरेक्टली. सी आई एम पुटिंग दिस, मैंने ये वाटर, आई हैव ड्रेन्ड आउट दिस वाटर एंड आई एम पुटिंग दिस रागी, सोक्ड रागी इन द जार. आई विल पुटिंग अ बिट ऑफ वाटर फॉर द pulsing of this grain. तभी तो
किस तरीके से ये नीचे मिल्कीनेस, ऊपर वो अभी ग्रेन्स में अभी भी मिल्की है ना, तो उसमें हम और पानी डाल के उसका पूरा मिल्कीनेस रिमूव कर लेंगे। मैम इसको दोबारा ग्राइंडेबल तो नहीं है जैसे अब क्योंकि इसका जैसे आटा गूंदते हुए जो ऊपर का रेसिड्यू बच गया, हाँ ये क्योंकि सारा हस्क है। With this ragi milk, right? All plant-based milk, because people now they are more aware, they are actually conscious about their health. They know the benefits of these kind of food products, so definitely they will jump into this thing. आपके पास आएंगे ही आएंगे without any doubt. If you make tastier, healthier options for them, right? Now what to do? पीना है इसको? So you can add any kind of flavor of your liking in this. Whether it is vanilla, cardamom, इलायची डाल सकते हो, है ना? इसको आप गार्निश कर सकते हो with some almonds and कोई cashews डाल लें. That is all completely your choice. तो इसको कैसे करना है? अभी मेरे पास तो सिर्फ चीनी है, तो I am putting only sugar in this, so that you people can taste the milk. कि इसकी वैलिडिटी कब तक होती है ना? वैलिडिटी को हम फूड में बोलते हैं शेल्फ लाइफ। तो इसकी शेल्फ लाइफ इज वेरी लेस। कोई भी दूध का प्रोडक्ट है जो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? 1 day ओनली, एक ही दिन होती है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन फ्रिज में, 3 दिन फ्रिज में, है ना? तो सेम इज बिकॉज इट इज अ मिल्क प्रोडक्ट, इट इज हैविंग लॉट ऑफ वाटर, तो इसका शेल्फ लाइफ भी 1 or 2 days है, उससे ज्यादा नहीं है। ये खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, सेम जैसे मिल्क। इसका पनीर कर्डलिंग हो जाती है इसकी, पर इसका पनीर नहीं बनता।